This was the first homework. Can a body have charge of 4 into 10 to the power minus 19 coulomb? The answer will be no, because when we calculate the n should be integer. Q is given, Q दिया है, E should be known, n is equal to Q by E, divide कर देंगे, it comes 2.5. So it is, this much charge cannot be held by any object because 2.5 electrons will not get transferred. 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, या तो 2 ट्रांसफर होंगे पूरे और they will be 3. So 2.5 will not get transferred. So therefore answer is no. Body cannot have, either it should be slight less or more such that n should be either 2 or either 3. Clear? Answer is no. Can body has a charge of 4 coulomb? 4 coulomb हो सकता है? बोलो. Yes, 4 coulomb is possible, है ना? Because कलम ने 1 coulomb का निकाला था, this number came, this full number 10 to the power 18 भी है, it will be 6, 2, 5 and so many zeros, है ना? इसका 4 times हो जाएगा फिर 4 coulomb में. Yes or no? 1 coulomb और -1 coulomb, -1 coulomb means electrons और +1 coulomb means shortage of electron. किसी बॉडी में +1 coulomb है, it means these many electrons are less there. -1 coulomb है, so these many electrons are plus there, surplus. All right. Sometimes boards examination they ask कि when we see the charges like 1 coulomb, 2 coulomb, or 1.2 coulomb, 1.3 coulomb, like this, are they possible? They may be possible because they are very big charge. When we divide the charge with this value, ये एक मिनट, जब हम डिवाइड करते हैं इससे 1.6 वाले टर्म से, तो ऐसा आ सकता है 1.5, 1.3 coulomb में. I am talking about this. It appears to be non-quantized. So, but they may be quantized. इसीलिए we say that when the charges are more, very large, as compared to charge an electron, so they appear to be what is called non-quantized, but the fact is that they are quantized. There are very large charges, तो उसमें ऐसा लगता है, but होता है वो quantized है. Maybe possible 1.1 coulomb ऐसा डिवाइड करने से पता लगेगा, फुल नंबर आ सकता है. जैसे इसमें था, इसमें 1. इसमें ऑफ कोर्स 4 था, तो n will be on large scale. n जो है means n should be full number always. That's all. Now, what was the next question? NCERT book question was there, I think. This one, है ना? इसमें भी n निकालना था, है ना? तो Q by E, n is equal to Q by E. डिवाइड कर दिया हमने, Q माइनस है ना, तो माइनस से डिवाइड कर दो. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है और एक बॉडी पे माइनस होगा, एक पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, नंबर्स विल बी पॉजिटिव. तो 1 it comes to be 1.8
75 into 10^12 है ना, फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन. पॉलिथीन नेगेटिव हो गया ना, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग ऑन द पॉलिथीन. ऑलराइट, एंड ट्रांसफर ऑफ मास इज देयर. यस, सर्टेनली. जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं multiply by the mass of each electron, that much mass is transferred. That much mass is transferred. ठीक है, आंसर लिख सकते हैं. यस, यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो. आई थिंक दे हैव कैलकुलेटेड ऑल. लेट्स सी द आंसर. इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया. देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इज दिस, दे हैव राउंडेड ऑफ इट, 2 कर दिया उसको. बट यू कैन लीव इट लाइक दिस. इट इज नॉट दैट whatever the answer is given in book you follow that. Your answer is this, you can write, leave it like that. And yes, but negligible amount. कितना amount they have calculated also. 2 into 10 power minus 18. अभी मैंने mass of electron नहीं बताया आपको. You can find out from that when we write the mass of electron how much it is there. So these many electrons are there. Multiplied mass of each electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो आंसर आ जाएगा ये. ठीक है, तो mass of electron sometimes are given, most of the time will be given to you. Answer is yes. They are not asked how much, but answer we have to write yes or no. Any doubts so far? I don't think. Still you can ask your doubts. चलो आगे देखते फिर. We will learn about conductors and non-conductors. You have come across many conductors in your life. All metals are conductors, है ना. तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखते हैं हम लोग. जैसे copper is a good conductor, silver is further good conductor, iron is also the conductor, earth is also the conductor. earth भी conductor होती है. ठीक है, अर्थ की टॉप सरफेस seems to be नॉन कंडक्टर, बट थोड़ा सा डीप उसमें जाते हैं तो इस मॉइस्चर इज देयर एंड ऑल, इट इज गुड कंडक्टर. तो इसलिए अर्थिंग करते हैं. अर्थिंग थोड़ा अर्थ को डिग करके कॉपर प्लेट अंदर डाल देते हैं, तो अर्थ इज अ गुड कंडक्टर. ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कंडक्टर, एनिमल्स बॉडी आल्सो कंडक्टर. इसलिए शॉक लगता है ना, लाइव वायर को टच करें, करंट इज पासिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी, तो इसीलिए शॉक लगता है ना, कंडक्टर है. तो कंडक्टर्स आर मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आल्सो, because they have large number of free electrons which can move freely but cannot leave the conductor because they are bound due to the force of proton in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है, प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर. बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे ब्रेक अवे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एटम्स. एटम से ब्रेक अवे हो जाते हैं और फ्रीली घूमते हैं, है ना. तो दे आर नो लॉन्गर बाउंड टू देयर इंडिविजुअल एटम्स, बट दे आर बाउंड, दे रिमेन्स विद इन द कंडक्टर, मूव कर सकते हैं. देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो, हीट के भी. एनी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन इनसाइड comes to the surface because they are free to move, तो सरफेस पे आ जाएंगे, so that they should be at larger distance. लार्ज डिस्टेंस पे रहने के लिए वो सरफेस पे आ जाते हैं. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहेंगे बस. ऑल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग ऑन द सरफेस. इवन इसमें से जो ब्रेक अवे होंगे वो भी सरफेस पे रहेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन दिया वो भी सरफेस पे आ जाएंगे, बिकॉज सरफेस पे दे कैन मेंटेन मोर डिस्टेंस, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस. ऑलराइट,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रिक बिकॉज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये हम प्रूव भी करेंगे, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, but we can just remember also, since no extra electrons, since no extra electrons are there inside the conductor, therefore electric field is zero inside conductor के अंदर, electric field is zero, shock नहीं लगेगा उसके अंदर, even if it is charged. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फील्ड अभी हम पढ़ने वाले, हाउ डू वी डिफाइन द फील्ड, वी विल सी इन दिस मंडे को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर में है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज रिलेटेड टू फील्ड, है ना. फील्ड होती है तो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब वर्क डन करना पड़ता है हमें चार्ज को मूव करने के लिए. तो विल सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. So these are the points we have to remember for solving the problems of this electrostatics. We are talking about electrostatics यहाँ पर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रेस्ट पर रहते हैं ना, चार्जेस मूव नहीं करते, एट रेस्ट. नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्जेस मूव करते हैं, तो उसके अंदर फील्ड होनी चाहिए मूव करने के लिए. नेक्स्ट चैप्टर में फील्ड विल बी देयर इनसाइड द कंडक्टर विच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट जो हमने पढ़ा था 10th में, उसमें फील्ड होती है अंदर, बिकॉज इट इज मूविंग, इट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मूव. इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते, फील्ड जीरो होती है, अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते. एंड ये चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. चार्जेस रेस्ट पे रहने चाहिए. इनिशियली दे विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, but after that they will come to rest. Can you see this all points clearly? You can keep noting also, I'll give you the time. Note करने का time दे रहा हूँ, just note down. Electric field will be defining force per unit charge. We'll define it, but you note down. All right. तो कंडक्टर्स के ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट. एंड अदर वन विल बी इंसुलेटर्स, जिनको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं. डन? यस सर. तो इसके अपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी. देखो, इंसुलेटर्स की आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, एक नया नाम है फॉर यू. तो इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स जैसे ग्लास, रबड़, माइका, वुड, ये सब इंसुलेटर्स हैं which are the very bad conductor of electricity because very small number of free electrons. बहुत कम होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू दिस. इसमें कितने हो सकते हैं? 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. इसमें कंडक्टर में, इसमें लेस देन 10⁻10 पर मीटर क्यूब, उससे भी कम होते हैं. But they are not less as such, but comparing to this is less. Otherwise,
10 to the power 10 or 10 to the power 9 is 1 billion free electrons per meter cube. But they are not enough for conducting the electricity. इसमें बताया 10 to the power 29 free electrons per meter cube कंडक्टर्स में, ठीक है. और इसमें लेस देन 10 per ton. तो वेरी स्मॉल नंबर्स एज कंपेयर टू कंडक्टर्स एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव. उसका केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, वो दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे विल जस्ट बी गेट लोकलाइज्ड. जहां पे चार्ज देंगे वहीं पे रुके रहेंगे, नॉट फ्री टू मूव बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है. एक्स्ट्रा चार्ज कैन रिमेन इनसाइड. इसीलिए अगर तुमने कोई ग्लास बॉल लिया और अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया उसके सेंटर में, तो सेंटर में ही रहेगा वो, इनसाइड एनीवेयर. बट इसमें अगर तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, इट विल कम टू द सरफेस फ्री टू मूव. दे अप्लाई द फोर्स एंड फ्री टू मूव. एक्स्ट्रा चार्ज कैन रिमेन इनसाइड, है ना, अंदर चार्ज हो सकता है. देयरफॉर फील्ड होती है. चार्ज अगर एक्स्ट्रा चार्ज हुआ तो देयर विल बी फील्ड. फील्ड कैन एग्जिस्ट इनसाइड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल may not be same everywhere, may not be same. तो इसकी अपोजिट पॉइंट्स हो गए ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स अपोजिट हो गए. डी इलेक्ट्रॉन्स कम है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव. दे कैन रिमेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा चार्ज बोल सकते हैं कैन रिमेन इनसाइड. फील्ड कैन रिमेन इनसाइड. पोटेंशियल may not be same थ्रूआउट. जैसे सपोज क्लासरूम में मेटल डेस्क है, सिटिंग डेस्क जो है या बेंच है, तो उनका फ्रेम मेटल का होता है ना, और वुड का टॉप है जनरली. तो इफ यू प्रोवाइड द चार्ज टू द metal frame, so it will be get distributed from one end to other end and potential will be same throughout. बट अगर वुडन टॉप जो है उसको चार्ज दे दिया कॉर्नर में कहीं, तो वहीं पे रहेगा, और दूसरे एंड को टच किया तो शॉक नहीं लगता. मेटल को अगर कहीं पे लाइव वायर टच हो गई तो एनीवेयर यू टच इट यू विल बी शॉक्ड बिकॉज पोटेंशियल इज देयर एवरीवेयर. वुड में नहीं होता. इसीलिए कभी कोई लाइव वायर के कांटेक्ट में आता है तो वुड इज इंसुलेटर, तो उससे उसको कांटेक्ट उसको बचाते हैं, वायर को हटाते हैं उसकी बॉडी से या उसकी बॉडी को हटाते हैं कांटेक्ट से. तो वुडन रॉड या वुडन पीस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते. अगर लाइव वायर टच भी हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कम टू यू, है ना, देखा होगा. और या इंसुलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना है तो इंसुलेटेड रबड़ चप्पल पहनते बोले रबड़ स्लीपर्स पहन के करो, बिकॉज अर्थिंग मतलब current will not pass through the body and go to the earth. As I told you, earth is also the conductor. तो body से current pass नहीं होता है when we are using insulated sleepers and all. तो safe रहता है. Nervous system is safe. Otherwise, very small current can produce the breakdown in our nervous system. Body का resistance very high है, 10,000 kilo ohms. Current will be very small. I is equal to V by R. V is 220 volt supply जो अपनी होती है. Of course, we are talking about current electricity. है ना, we are तो 10 kilo ohms, 10 to the power 3 मिली एम्पियर में कुछ करंट आएगा, है ना, something. But this is dangerous for the human body. Nervous system will get breakdown even for the milliampere current also. So insulators are safeguarding in case of coming in contact with the live wires. Live wires जो 220 वोल्ट की होती है उसमें रिस्क रहता है. अदरवाइज जो चार्जर का जो रहता है, चार्जर का जो आउटपुट है
उसमें लेस देन 10 वोल्ट है. इफ यू आर एबल टू टच इट लाइव, नो प्रॉब्लम. 10 वोल्ट जो है, लेस देन 10 वोल्ट और लेस देन 20 वोल्ट और इवन लेस देन 40 वोल्ट तक बॉडी को हार्म नहीं होता है. सेंसेशन फील होता है. इन 10 वोल्ट का सेंसेशन भी शायद कभी कभी फील होता है. चार्जिंग की आउटपुट वायर को टच करो तो यू कैन फील इट, बट इट इज वेरी स्मॉल, नॉट डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी. ऑलराइट. तो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में मैंने बोला चार्ज दे दो वन एंड पर, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर. it is free to flow. They will maintain larger and larger distance. It will distributed all over the conductor and on the surface. ठीक है. तो this point we are needing in the further topics. जैसे different methods of charging. चार्जिंग को मैंने बताया था फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं. टेक द ड्राई कॉम एंड रब इट ऑन योर ड्राई हेयर. तो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें लूजली बाउंड है, जिनके बाउंड्स वीक हैं, जिसको वर्क फंक्शन बोला जाता है, लेस वर्क फंक्शन वाला जो सब बॉडी है उसमें से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, जिसमें तो बोथ विल गेट ट्रांसफर. जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिव हो जाएगी, जिसमें से चले गए वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो बाय रबिंग इट है ना, फ्रिक्शन और रबिंग. दिस इज वन मेथड. दूसरा डायरेक्ट मेथड है ना. अगर हमने चार्ज बॉडी को टच किया, जैसे ये मेटल स्फीयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये नॉन मेटल, ये तुम्हारा अनचार्ज है, तो इसमें से ट्रांसफर हो जाएंगे इधर. मेटल में डायरेक्ट कांटेक्ट से इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं. नॉन मेटल में थोड़ा सा लोकलाइज देंगे, थोड़े ट्रांसफर होंगे, बट मेटल में ट्रांसफर हो जाते हैं इजीली. फ्री है ना, फ्री टू मूव है. या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर फ्री टू मूव, इट विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस. ठीक है. तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से. थर्ड वन इज बाय इंडक्शन. ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए वैलिड है. कंडक्टर में फ्री टू मूव होते हैं ना. इंडक्शन का मतलब विदाउट टचिंग, विद, इसमें दोनों में कांटेक्ट में रहेंगी दोनों बॉडीज है ना. इसमें दूर से ही, फ्रॉम द डिस्टेंस वी आर इंडक्टिंग द चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर. तो देखो, लिसन वेरी केयरफुली, you understand that points and then you can write in your own words. देखो यहाँ पे देखो, induction is important. Sometimes maybe देखो, here are the two metals. ये दो metal balls है, this A and B. ये insulated stand है. तो contact में है. Now you bring the third body which is positively charged. इनके पास ले आएंगे. तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे इधर, है ना, और इधर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव. या फिर वी कैन से ये पॉजिटिव चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्जेस को दूर भगा देंगे, रिपेल करेंगे, है ना. बट प्रैक्टिकली होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, बट वी स्टिल सेड कि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. तो ऐसा हो गया अभी. तो क्या अभी क्या करेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा सेपरेट कर लो, दूर कर लो, ऐसा. नेक्स्ट वन इज दिस, मेक सम डिस्टेंस. तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर, दे विल नॉट बी एबल टू गो बैक नाउ. व्हाट टू डू नाउ, इसको अभी हटा लो, रिमूव दिस, यहाँ पे देखो. एंड अभी क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन्स विल टेंड टू गो दिस साइड बिकॉज ये पॉजिटिव है. दे विल अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर बॉडी विच इज पॉजिटिवली चार्ज. ऐसा हो जाएगा. नाउ इंक्रीज सम मोर सेपरेशन, इनको सेपरेट कर लो, दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. या इसका माइनस चार्ज विल बी, स्फेरिकल बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, स्फेरिकल बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. बोथ बॉडीज आर चार्ज नाउ. इनिशियली बोथ वर अनचार्ज,
and by bringing the charged body near to them, we have charged them, both of them. अभी इनको टच कर दो तो क्या हो जाएगा? What will happen if you touch it again? इनिशियली अनचार्ज थी, बाद में फिर अभी भी नेट चार्ज इज जीरो, जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उतने इधर शॉर्ट, उतने सरप्लस प्रोटॉन हो गए इधर, है ना? तो नेट चार्ज इज स्टिल जीरो. इफ यू टच देम तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गो बैक. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस विल मेंटेन इफ इनिशियली दे वर अनचार्ज. टोटल भी बाद में भी टोटल चार्ज विल बी जीरो. whatever surplus electrons are there, यहाँ shortage of electrons है, and net charge is still zero. If you touch them, you will see that finally system becomes zero again. आ रहा है समझ में? तो इस तरह से बिना टचिंग चार्ज कर लिया है, बट इट इज फॉर विच बॉडी? मेटल के लिए. फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्रीली मूविंग, देन ओनली इट इज पॉसिबल. अदर वन इज, देखो अदर एक और मेथड दिया है अपनी टेक्स्ट बुक में, लाइक दिस. सेकंड मेथड वी कैन अंडरस्टैंड. ये सेम अगर मेटल स्फीयर ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, ये इंसुलेटेड है वुड का या कोई इंसुलेटेड से क्या है, they will not go to ground. I told you ground is the conductor, तो वो ग्राउंड में नहीं जाने चाहिए, इसीलिए इंसुलेटेड स्टैंड में. यहाँ पे हमने निगेटिवली चार्ज बॉडी लाई. If you rub the glass rod with the silk, glass rod becomes positive. If you rub it with the fur, then glass rod becomes negative. That you can go through your books, which body कैसे. I told you negative, जिसमें लूजली बाउंड होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. तो निगेटिवली रॉड लेके आए हम, चार्ज नेगेटिव रॉड, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए. तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. देखो ग्राउंड से, ग्राउंड का सिंबल होता है ऐसा, टॉप मोस्ट लाइन इज बिगर एंड लोएस्ट वन इज स्मॉलर. ग्राउंड में कनेक्टेड. ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है हमेशा. ग्राउंड इज वेरी लार्ज, अर्थ इज वेरी लार्ज. अर्थिंग बोलते हैं उसको, अर्थिंग और ग्राउंड. शैल आई राइट इट? अर्थिंग आल्सो. its radius is very large, so its potential is zero. ये Q by R से ये फार्मूला पढ़ेंगे हम आगे चलते. तो potential is zero even if you give the charge. It needs very large charge to have the certain potential because radius is very large. ठीक है, तो negatively charged body लाए इधर, तो क्या होगा? It will attract positive charges. In other words, electrons, free electrons will go away. Free electrons इधर जाएंगे, अर्थिंग में चले जाते हैं. ठीक है, free electrons जो होंगे, they will be repelled, they will be going to earth. Shortage of electrons will make it positive. ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो अर्थिंग बाद में करेंगे. देखो ओके, यहाँ पे अर्थिंग बाद में करते हैं, ये सेकंड पार्ट है. यहाँ पे देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे आ गए, देन यू डू द अर्थिंग. अर्थिंग कर देंगे. अर्थिंग ये जो है और दूर चले जाएंगे यहाँ से. अर्थिंग इज फार अवे, है ना? तो दे विल बी हैविंग फ्रीडम टू गो फर्दर अवे. यहाँ पे माइनस माइनस फोर्स तो लगेगा, तो दे विल बी गोइंग टू अर्थिंग. ठीक है, तो अर्थ में चले जाएंगे वो. आफ्टर दैट यू कट द कनेक्शन. यहाँ का कनेक्शन निकाल दो, या तो स्विच लगा के रखो यहाँ पर, मेक द स्विच एंड स्विच ऑफ कर दो, सो दैट दे शुड नॉट कम बैक, वापस नहीं आने चाहिए. तो यू रिमूव द कनेक्शन ऑल टुगेदर, पूरा वायर निकाल दो. ऑलराइट, एंड दो इलेक्ट्रॉन जो अर्थ में चले गए, दे विल नॉट बी एबल टू कम बैक. नाउ यू रिमूव दिस रॉड, तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव. They will be getting uniformly distributed all over the place. So that's how it will be charged. Now you can ask your doubts. कुछ इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क. ये इंसुलेटेड रहेगा. ये अगर तुमने इसको मेटल का बना दिया
तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से फिर से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे डायरेक्ट. Shall I write here? Conductor re-insulated stand. ठीक है. So that's how you can charge it. You can write one of the method if it is asked, but you should know it proper explanation. अगर explanation हमें याद थोड़ा सा, तो we can do it. Property याद है metal की, तो we can do it. You can learn the properties of metal. Free flow होते हैं. You can explain yourself. इसी पर बेस जो है, ये जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा, there is one device called gold leaf electroscope which is used to check whether body is charged or uncharged. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट अस सी व्हाट वी हैव सीन सो फार, देन मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक. तो हम लोगों ने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, है ना? तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव लर्न द चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड ऑफ कंडक्टर. तो ये कंडक्टर था, ये इंसुलेटर था, है ना? तो 3 methods of charging, even more methods are there. ये 3 इस बुक में है, आगे चल के हम देखेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड होता है, केमिस्ट्री में भी है वो. जब हम इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल पर if we incident the photons on metal plate, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, they will come out, this will be positively charged. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी मेटल चार्ज हो जाता है. देन थर्माइनिक इमिशन होता है, हीट से भी चार्ज कर सकते हैं. देन फील्ड इमिशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट. So there are further methods of charging, but in this chapter they have given 3 methods. So we'll focus on that. By rubbing, by friction we can say, then direct contact by touching 2 metals, है ना? Charges will get transferred from one to other. जैसे हम टच करते वायर को, लाइव वायर को टच किया तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं अपनी बॉडी में, है ना? दे आर स्टार्टेड मूविंग. और अर्थ के कांटेक्ट में है तो अर्थ का 0 पोटेंशियल, तो अपनी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाएंगे. दैट बिकम्स समटाइम्स डेंजरस, है ना? तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी चार्ज करा सकते हैं बॉडी को. एंड indirect method, induction is the indirect method. Induction is indirect method. So we have seen, yes, anything? In the current. Sound is not clear. Thoda sa just hold on and then ask. Now you can ask. Yes. Yes, go ahead. Who is asking a doubt? In the current, what you ask? Okay, you can ask later on. Sound is not coming to me. You want to still ask the doubt? Audio system ठीक करके पूछ लो. चलो. I'm just waiting. Current में क्या? I could hear only current. Current जो है, it is flow of electrons in one particular direction. इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं. बट अगर हम उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बैटरी से या जनरेटर का पोटेंशियल डिफरेंस, देन दे आर एबल टू फ्लो इन सर्टेन डायरेक्शन and that makes the current and that makes the things work. Electrons अगर particular direction में drift हो रहे हैं, then only things are working. Otherwise random drifting होती रहती, कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते in all over the directions when we don't connect the potential difference. High potential, low potential, like water. Water flows from high level to low level. Similarly, current flows from high potential to
low potential. So we'll learn about the current in the next chapter. देखो, which device is used to check that body is charged or not? So answer is gold leaf electroscope. कौन सा device है? Gold leaf electroscope. So you can make it at home. You don't need the gold leaf. You can take aluminum leaf also. जैसे यहाँ पे सिंपल डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पे गोल्ड या एल्यूमिनियम लीफ, यहाँ ये इनिशियली दिस लीफ आर टचिंग, दोनों लीफ टच कर रही, बोथ आर टचिंग टू ईच अदर, एंड ये मेटल है, मेटल रॉड है. इफ यू ब्रिंग द चार्ज बॉडी, यहाँ पे चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो चार्ज विल फ्लो टू द मेटल. जस्ट नाउ वी आर डिस्कस कंडक्टर में फ्लो, कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट विल बी गोइंग टू द अदर एंड, यहाँ पे पहुंचेगा और ये भी इधर भी आ जाएगा, इधर भी. लीफ विल मूव अपार्ट. यू कैन सी दिस डायग्राम. यहाँ पे अगर मैं टच किया, यहाँ से आ जाएंगे चार्जेस नीचे, इस पे भी और इस पे भी, तो दे लीफ विल मूव अपार्ट. So you will come to know whether you are touching the charged body or uncharged body. So you can make it at home. एक इसमें कैसे करते हैं, ये ग्लास बॉक्स में इसलिए रखते हैं कि there should not be disturbance of air and all. So you can see the leaf getting deflected clearly. And otherwise, if you don't keep it in the box, no problem. Just bring the aluminium foil, put कर दो, कोई मेटल की वो ले लो और रब करो कॉम को अपनी हेयर से. तो if you are able to produce significant charge, then you can see the deflection of leaf away. ठीक है? All right. तो gold leaf electroscope simple, just it is leaf of gold, very thin. जितनी thin होगी उतना sensitive होगी. You can see it deflecting, moving away. If it is heavy, then you may not see that inertia, say they will not be moving away. Force will not be that much enough to move it away. Otherwise, there will be repulsive force. But you will not come to know whether body is positively charged or negative. Whether it is positively charged, then also leaf will move apart. If it is negatively charged, then also it will move apart. Because of like charges repel, दोनों पे like charges आएंगे, either plus और दोनों जगह minus. So you should remember the name, gold leaf electroscope, or simply electroscope, you can just remember. Pay attention in the class, something is wrong. Who is having disturbance? Video off कर दो. Whenever required, then I will tell you. All right. So gold leaf electroscope is the device to check whether body is charged or uncharged. Now, there are two particles. One is alpha particle. Do you have any idea about alpha particle? Alpha particle is nothing but a helium nucleus. Helium में कितने protons होते हैं? 2 protons and 2 neutrons. ठीक है? So it will have the charge twice that of charge of proton. Proton का double charge होगा, 2 proton है तो charge double हो जाएगा. Helium alpha particle is helium nucleus है ना. Helium nucleus को alpha particle बोला जाता है. You must have heard alpha particles, alpha, beta, gamma. Radiation in radioactivity. Alpha is helium nucleus. Beta is the beta negative is the electron. So these are the terms used. So alpha is helium nucleus. It will have the charge. Okay, charge double of proton. ठीक है. 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के अंदर और 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन्स आर देयर. तो चार्ज जो है ट्वाइस हो गया और मास कितना हो जाएगा?
मास इज अबाउट 4 times दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट सेम मास है, थोड़ा सा मोर होता है बट वेरी क्लोज टू द प्रोटॉन। तो कितना हो गया? 4 times दैट ऑफ प्रोटॉन, रफली 4 times दैट। ये कितना हो गया? ट्वाइस। ठीक है, तो दिस पॉइंट्स यू टू रिमेंबर, दिस मे नॉट बी गिवन, वैल्यूज मे नॉट बी गिवन, मास कितना है, चार्ज कितना, दिस यू हैव टू लर्न इन एनी केस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल। एंड सेकंड वन इज ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन इज ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। ड्यूटेरियम में कितने? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में यू सी 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, 1 प्रोटॉन, अदर 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मैं डार्क शो कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, नो चार्ज है ना। तो इसमें ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन है दैट हैज बीन नॉक्ड आउट, इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दो तो न्यूक्लियस बचेगी। तो चार्ज कितना होगा? सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, 1.6 into 10⁻⁻19। मास कितना होगा? ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज आई टोल्ड यू न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, तो मास ट्वाइस है ना। तो चार्ज तो सेम हो गया, मास ट्वाइस हो गया, 2m है ना। All right. So these points you have to remember. In magnetism also, we require this particular alpha particle ka magnetism, and in this chapter we need it. All right. So you can just make the note if you can't remember this. Okay, you can ask your doubts. Abhi doubts honge to just I will wait for you. Let us see what we have seen so far. So this is clear. You have to just remember the things. Electroscope is clear, and induction method is also. Hope there should not be any doubt. इंडक्शन मेथड से कौन सी बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं? कंडक्टर्स को ओनली, नॉट द इंसुलेटर्स, बिकॉज उसमें फ्री फ्लो नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। एंड these are the points we have learned so far, not much today. And now Coulomb's law, it is similar to the Newton's law. दो Newton's law 2 masses के लिए था, m1 m2 and distance rn. What was that? F is equal to g m1 m2 by r square. तो ऐसे ही चार्जेस के लिए ये q1 q2 हो जाएंगे, r स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विल चेंज, है ना। तो लेट्स सी व्हाट इज द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. It is about the force between the two charges. Earlier we have seen like charges will repel, unlike charges will attract. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है यहाँ पर, मास में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, चार्ज्ड बॉडीज में, चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन से. तो इट इज अबाउट द फोर्स, सॉरी एक मिनट, इट इज अबाउट द फोर्स between two point static charges, रुके हुए चार्जेस के लिए. When the charges move, then there is a magnetic field also. So we cannot accurately calculate the force between the two charges. इसलिए static होना चाहिए. Magnitude of force on Q2 by Q1. ये Q2 है, तो ये वाला चार्ज Q1 जो है इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है? F21. ठीक है, कितना होगा? F21 is constant of proportionality, will write how much its value is. Magnitude of product of two charges. मॉड में इसलिए लिख रहे हैं, we don't have to take minus, हम लोग सेपरेटली लिखेंगे. एक प्लस एक माइनस है,
विल राइट अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों माइनस है तो रिपल्सिव, दोनों प्लस है तो रिपल्सिव। वेक्टर क्वांटिटीज में जनरली माइनस नहीं लिखा जाता है, जो वेक्टर क्वांटिटीज है माइनस इज अवॉइडेड, उसका मैग्नीट्यूड सेपरेट निकालते हैं एंड डायरेक्शन सेपरेट बताएंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द Q2? Q2 will be applying the force F12, force on charge 1 by charge 2 will be in opposite direction. So F12 is K Q1 Q2 by R, same, दोनों सेम है। ओनली थिंग, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सेस इक्वल हो गए क्या? आर द फोर्सेस इक्वल? आंसर इज यस, इन मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो both apply equal and opposite forces on each other, both apply equal, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ऑन ईच अदर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल फार्मूले से लिख सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस ऑल, दिस वाज जस्ट एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज द फार्मूला, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस which is equal in magnitude and opposite in direction. So it is a product, okay, product of two charges, mod में लेंगे because we are not writing minus, even if it is minus, mod का मतलब क्या, प्लस हो जाएगा। and अगर कोई चीज माइनस है, mod में प्लस हो जाती है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड की। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स, वो भी रेसिप्रोकल में, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस एप्सिलॉन। जस्ट लिसन, जस्ट सी, देखो ये सिंबल जो है एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, विच इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में रखे हैं वो चार्ज पार्टिकल, उसकी परमिटिविटी। अगर वैक्यूम में है एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं उसको, एप्सिलॉन नॉट, नॉट मीन जीरो, एप्सिलॉन नॉट विच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस को वैक्यूम बोलते हैं। तो इसको, इसकी देयर इज नो डेफिनेशन एज सच, बट वी कैन जस्ट डिफाइन इट स्टिल इफ यू वांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी? Permittivity of medium is the electrical property which controls the electrical effects in that medium, like forces, fields, etc. किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या है, वो कितना फोर्स अलाउ करेगा या कितनी फील्ड अलाउ करेगा थ्रू देम। In different medium, forces between the charges will be different. Forces are vacuum in, forces are maximum in vacuum, मैक्सिमम वैक्यूम में होते हैं, वैक्यूम में मैक्सिमम होंगे, बाकी सभी मीडियम में कम हो जाते हैं। इट विल बी डिक्रीजिंग इन अदर मीडियम। वाटर में डाल दो तो 1/80 टाइम्स हो जाते हैं, फोर्स जो है 1/80 टाइम्स हो जाता है वाटर में। वी लर्न व्हाई, व्हाट इज द क्राइटेरिया 1/80 टाइम कहाँ से आता है। बट इन एनी अदर मीडियम they will be decreasing because force जो है, that medium reduces the force and field, force भी कम कर देगा दूसरा मीडियम, आगे चल के हम फील्ड पढ़ेंगे वो भी कम हो जाती है। तो permittivity of medium is the property of medium by which it controls the electrical effect. So nobody will ask you definition, but you should have idea परमिटिविटी क्या करता है, फोर्स डिसाइड करता है कितना फोर्स उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच में रहेगा। एंड दिस इज ओनली फॉर टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देयर इज नो सच फार्मूला कि फोर्स बिटवीन थ्री चार्जेस, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है थ्री चार्जेस के बीच में। ओनली ऑलवेज बिटवीन टू चार्जेस आर टू मासेस। ठीक है, तो इजी टू रिमेम्बर, इसमें कुछ नया ज्यादा नहीं है। न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ है सिमिलर टू दैट है।
मास को चार्ज से रिप्लेस कर दिया, आर स्क्वायर एज इट इज, कांस्टेंट हैज बीन चेंज्ड. तो न्यू में भी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम. सॉरी, वैक्यूम की कितनी होती है? लेट्स सी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा तुम्हें, इसको ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ये वाला टर्म. व्हाट इज द वैल्यू? you have to learn that value, sometimes may not be given. ठीक है, कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया. फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस के लिए है, इट इज इन स्टैटिक चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए. तो KQ1 Q2 by R square, K की वैल्यू 1/4 epsilon naught. Epsilon naught is the what is called is the permittivity of particular epsilon. तो वैक्यूम, epsilon नॉट वैक्यूम की, नॉट मतलब वैक्यूम के बारे में बताएगा, और नॉट नहीं है तो अदर मीडियम होगा फिर. तो देखो अभी कितनी कितनी वैल्यू है, जस्ट लेट मी होल्ड इट लाइक दिस. तो ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी तुम्हें. वैक्यूम की कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12. अभी तुम लोग 12th में आ गए तो 12 हो गई है, और 11th में ग्रेविटेशन का चैप्टर था, वहां पे -11 था, याद है? 6.67 इंटू 10⁻11. यहाँ पे 12th में 12 हो गई है कूलम्ब्स फोर्स के, ये कांस्टेंट इन द कूलम्ब्स फोर्स. और 8.8 वेरी क्लोज टू 9 है ना. कभी टाइम कम है तो रफली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए 9 से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या, हमेशा हमें क्लोज आंसर्स देखने पड़ते हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता उसमें. so you can make it 9 and calculate. ऑफ कोर्स नीचे भी 9 आ रहा है, but that is the other thing. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझ में आ गई. यू हैव टू लर्न दिस, मे नॉट बी गिवन. यूनिट कैसे निकालेंगे इसका? देखो, यूनिट फार्मूले से निकाल सकते हो. देखो कैसे निकालेंगे. एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, एफ को नीचे ले आओ. ऊपर क्या है? Q1 Q2, तो Q C स्क्वायर हो जाएगा. नीचे न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, आई मीन R स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, तो C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय फार्मूला. डोंट हैव टू लर्न मग इट ऑफ, फार्मूले से निकाल सकते हैं यूनिट. एंड कंप्लीट टर्म, ये जो 1/4 है, उस टर्म की वैल्यू जो है 1/4 सबकी वैल्यू पुट कर दो. पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये. व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, you come you get this value 9 into 10⁻9. ये भी 9, ये भी 9. एक्चुअल में ऐसा आता है वो कुछ 8.99999 ऐसा, तो वी विल मेक इट 9 ओनली. और ये रिवर्स हो जाएंगे, अभी डिनोमिनेटर में है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे यूनिट्स. You don't have to write the unit of this, only now this value is put here. तो फार्मूला ये बन गया. अभी क्या बन गया? 9 into 10⁻9 Q1 Q2 by R square. यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन होगी. Air also has almost same value of permittivity as that of vacuum. तो एयर एंड वैक्यूम में दोनों में हम सेम लिख सकते हैं फार्मूला. वी कैन जस्ट राइट सेम फॉर एयर आल्सो. ठीक है, एयर के लिए भी सेम लिख सकते हैं. एक मिनट, कैन यू सी इट? एयर के लिए भी वैलिड है ये फार्मूला, और वैक्यूम के लिए भी, बिकॉज एयर की परमिटिविटी भी ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस है, वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट. इसके बाद की डिजिट चेंज होती है, फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी सेम. ठीक है, तो दिस फार्मूला इज ओके नाउ. कैन यू सी? इस पे आई विल गिव यू 2 क्वेश्चन एंड देन वाइंड अप.
दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए रेशो आप चार्जेस 1:2 दे देंगे। फोर्स का रेशो हमेशा 1:1 रहेगा। बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस, क्योंकि दोनों के फार्मूले में Q1 Q2 आ रहा है। जैसा कि सपोज ग्रेविटेशन के चैप्टर में आया, आस्क यू who will apply more force, whether you are applying more force on the earth or earth is applying more force on you. The answer is same. We both apply equal and opposite force. जितना हम अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं उतना अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। जस्ट विल वाइंड अप ये दो। ओके, these are the two questions. You take the snapshot of this. Find force between alpha particle and deuteron separated by 1.6 meter in vacuum. This is the homework number 1 and this is homework number 2. What is the minimum force between 2 point charges separated by 1.6 meter apart in vacuum? You can take the snapshot of these two questions. थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको, देखो। Apart from that, NCERT book question भी मैं दे रहा हूँ, because we don't have the class tomorrow, Sunday है। Monday we'll have the class, same timing, and you have to do at least 4 questions in homework. ये 2 हो गए और तीसरा है, ये छोड़ दो, ये 1.1 डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। यू कैन जस्ट राइट ओनली नंबर। टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक का ओनली नंबर लिख लो, नॉट दैट क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं। एंड 1.2 फर्स्ट 2 questions of exercise, and apart from that these 2 questions. अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन का चार्ज मैंने बता ही दिया है ना। एंड बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन, ऑलरेडी हिंट हैज बीन गिवन फॉर दिस क्वेश्चन yesterday. Now you can ask your doubts. From my side it's over. You can ask your doubts. Sir, can you scroll up? Okay, this one kitna, how much? Can you show the whole thing, sir? The whole thing, ऐसे देखो, ये Coulomb's law you want to see? Yes, sir. देखो पहले इतना देख लो, then next. योगेश सर, सुनीता मैम ज्वाइन। हाँ, जस्ट इनको थोड़ा सा छूट गया था। माई क्लासेस ओवर। Sir, can you scroll next? हाँ, नेक्स्ट वन इज अप टू, ये एक साथ देख सकते हैं। दिस मच। Done? Yes, sir. Okay, then send your homework, all the 4 homework today itself. Chalo, thank you. Then I am leaving it. Okay. Thank you, sir. बेटा केमिस्ट्री स्टूडेंट्स टू स्टे बैक। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स स्टे बैक। हाँ सुनीता मैम, यू कैन